Okay, good morning, dear students. Hope you are enjoying your study and a good health. We are going through our chapter number 10, reaching the age of adolescence. What are the changing taking place in boys and girls during this adolescence? That means during the period wherein a child is becoming an adult. Physical, physiological, emotional, mental, intellectual changes. All these changes take place. And we have studied in detail about the reproductive phase in the humans. And we have also studied what is the role of hormones in the reproduction. Okay? So today we will be doing what? What is reproductive health? And what are the other hormones and the gland which secretes hormones other than the sex hormones? So first of all, let's try to understand what is a reproductive health. Reproductive health बच्चों क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ ए पर्सन. यानी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली समाज में भी बीइंग ए पर्सन इन ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी उसका जो सेहत है, दिमाग है, सामाजिक तौर पे कैसा भी है वो, all in all the matters relating to reproductive system at all stages of life. That is reproductive health. How it can be maintained? और particularly क्या है? During the adolescence. During the adolescence. That means during that period जब एक बच्चा अडल्ट की तरफ बढ़ रहा है, तब हमें अपनी सेहत का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. सो वंस अगेन वी रिपीट, ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ ए पर्सन इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Okay? At all stages of life and in particular during the period of adolescence. तो कहने का मतलब क्या है? उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? What are the nutritional needs of the adolescents? What about physical hygiene for the adolescents? What about the physical exercise for the adolescents? Should they play? Should they do exercise or not? Okay. And lastly and important, emotional changes do take place. There is a surge toward being attracted by bad things. So say no to drugs. It influences the mind. It take you in the ditch. गड्ढे की तरफ लेके जाता है. So we will now discuss all these in details. ठीक है? Harmful effects of taking drugs and all that, वो सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. Okay? Then we will study hormones other than sex hormones. We have a picture here showing you the other hormones, who is the controlling gland and all that. All we will study today. So I hope you have understood the reproductive health. यानी कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एट ऑल स्टेजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट ऑल टाइम ऑफ लाइफ, इन पर्टिकुलर द एडोलेसेंट पीरियड. तो कहने का मतलब क्या है? व्हाट आर द कंडीशंस? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ? कंडीशन फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर, it is necessary to eat balanced diet during adolescence. It is necessary to maintain personal hygiene during adolescence, and it is necessary to take physical exercise during adolescence, along with
it is again necessary to avoid taking any drugs during adolescence. यानी कि ये जो हमने यहाँ लिखा है इन पर्टिकुलर adolescence, तो आपने अच्छा खाना खाना है, साफ सुथरे रहना है, एक्सरसाइज करनी है और से नो टू ड्रग्स. अब न्यूट्रिशनल नीड में क्या आएगा बच्चों? अच्छे खाने में क्या आएगा? ए बैलेंस्ड डाइट, a diet which provides you sufficient quantum of carbohydrates, energy giving foods, कहने का मतलब, which contains carbohydrates as well as what? Carbs, oils and fats. Nutritional need में क्या आएगा? Carbs, carbohydrates, oils and fats. ये सब क्या करते हैं? आपको एनर्जी देते हैं. और आपको क्या चाहिए? Since you are growing, reproductive system is growing, what you need? You need proteins. A diet which contains a lot of proteins. 6th में हमने डिटेल में पढ़ा था components of food, which are the food which contains carbohydrates, which are the food items which contain of this oils and fats, and which are the foods which contains proteins, pulses. उसमें सीरियल्स आ जाते हैं कार्ब में. ऑयल्स एंड फैट्स आपका घी, बटर, ऑयल्स, इवन योर वनस्पति घी इज आल्सो ए सोर्स ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स. इट इज डायरेक्टली मेड फ्रॉम द, क्या कहते हैं, सीड्स ऑफ दिस कॉटन एंड ऑल दैट. इट कंटेन्स द विटामिन ए एंड डी. सो देसी घी, वनस्पति घी, ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सरसन ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑल दिस कम्स हियर. Carbohydrates, mainly cereals. Proteins, mainly pulses. Then vitamins and minerals, fruits and vegetables. Fruits and vegetables. They provide you the bulk of vitamin and minerals required by the body during the period of adolescence. तो कहने का मतलब क्या है? आपको एक बैलेंस डाइट मिनिमम लेनी है. और व्हाट इज ए बैलेंस डाइट? विच हैज सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड टू मेंटेन यू हेल्दी. दैट इज ए बैलेंस डाइट. सो कहने का मतलब क्या है? आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होने हैं, ऑयल्स एंड फैट्स भी होने हैं, प्रोटीन्स भी हैं, विटामिन एंड मिनरल्स भी. ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन वेज एंड नॉन वेज, चॉइस इज योर. चॉइस इज योर. अब क्या? वाई विटामिन एंड मिनरल्स? विटामिन क्या है बच्चों? दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीजेस एंड ऑल दैट. एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड आयोडीन. आयोडीन का अलग फंक्शन है. इट कीप्स योर थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग प्रॉपरली for the manufacturing of thyroxine hormone. Iron क्या करता है? It is required for the purpose of making hemoglobin, which takes oxygen to the all parts of the body for respiration, because we require energy. Then calcium and phosphorus for bones and teeth and all that. That means जो मेजर कंपोनेंट्स फूड के हैं जो हमने 6th में पढ़े थे, all should be there. All should be there in the food of what? Adolescence, or rather you can say these are the nutritional needs of the adolescents. Okay? Then physical hygiene. Yes, also you can say, कई बार आपको बोलते हैं दूध भी पीना चाहिए. बिकॉज क्या है बच्चों? दूध क्या है? मिल्क इज इटसेल्फ ए कंप्लीट डाइट इन इटसेल्फ. ठीक है? सो रादर टू से वन थिंग मोर इज देयर. इनफैक्ट वी आर इन इंडिया, और हमारे यहां बच्चों क्या होता है? एक सिस्टम है. व्हाट्स आवर डाइट वी आर टेकिंग, इंडियन डाइट, इट्स इटसेल्फ ए बैलेंस डाइट. रीजन बीइंग इन फ्यू फैमिलीज we commonly make dal during night and a vegetable dish during the morning time. यानी लंच में हम सब्जी भाजी बनाते हैं और रात को दाल बनाते हैं. उसमें अच्छा सा घी डाल के भी खाते हैं. चपाती लेते हैं,
हम लस्सी पीते हैं मटके वाली, ये दही भी खाते हैं. सो ऑल व्हाट आर दीज? और जो क्या कहते हैं नॉन वेज डाइट वाले होते हैं, दे टेक एग्स आल्सो, दे टेक फिश और दे टेक मीट आल्सो. तो उसमें क्या है, हमें ये सारी चीजें मिल जाती हैं, ये सारी चीजें मिल जाती हैं. एंड वी इंडियंस आर व्हाट? वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग सीजनल फ्रूट्स. आम के दिनों में हम आम खाते हैं, तरबूज के दिनों में हम वाटरमेलन खाते हैं, और जब सेब होता है तो सेब. यानी जो भी सीजनल फ्रूट, रीजन बीइंग ड्यूरिंग द सीजन not only that particular fruit is easily available, it is available at a reasonable price also. So Indian diet is a nutritive diet, but still कहने का मतलब क्या है, वो आप लेते हैं लेकिन नखरे नहीं करने हैं खाने के वक्त, थोड़ा नहीं खाना है, भरपेट खाना है. टेक टू द योर फुल रिक्वायरमेंट. सेकेंडली क्या है, यस दीज डेज क्या है बच्चों, यंग ब्लड में पर्टिकुलरली योर एज एंड व्हेन यू विल गो इन कॉलेज लाइफ एंड ऑल दैट, क्या होता है बच्चों, गोइंग टू कैंटीन, टेकिंग चिप्स, eating this cold drinks and all that, which is nothing but a carbonated water mixed with synthetic chemicals, that's all. Flavors, orange flavor, the dew has, Sprite, ये सब क्या है, these are flavors, nothing else. It is a synthetic chemicals which have been made in the laboratory. So taking pizzas, burger and all that once a while, once in a week chalega, but you should not make it a regular habit or regular food in your life. It will not be a nutritive diet. It will not be a nutritive diet. Okay, now coming to the physical hygiene for adolescents. Yes, it is must. It is must in the sense, क्या होता है बच्चों, यू आर ग्रोइंग, यू आर प्लेइंग. होता क्या है, इस एज में हम वी आर डूइंग मोर एक्टिविटीज, सो यू आर बाउंड टू हैव स्वेट, योर दिस सेबेशियस ग्लैंड एंड ऑल दैट ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, दे आल्सो वर्क मोर. क्या होता है उसमें, स्वेटिंग से क्या होता है, आपने देखा हो कई बार एड भी आती है, वो पसीने की बदबू वाली आती है ना, तो कोई आपके पास बैठना पसंद नहीं करेगा. कहने का मतलब क्या है, ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग एज, सिंस यू आर डूइंग मोर फिजिकल एक्टिविटीज, यू आर बाउंड टू रिलीज मोर एक्सक्रीटिव मटीरियल. यू शुड टेक बाथ रेगुलरली, इन समर एटलीस्ट ट्वाइस ए डे एंड इन विंटर एटलीस्ट वंस. कहने का मतलब क्या, आपने अपने को साफ सुथरा रखना है, हाइजेनिक कंडीशन के अंदर रखना है. क्यों रखना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. अब सेकेंडली क्या, पर्टिकुलरली इन गर्ल्स ड्यूरिंग द पीरियड्स, you have to maintain proper hygiene conditions. You have to keep yourself neat and clean. और आजकल तो क्या है बच्चों, there are number of good sanitary napkin pads are available in the market, which absorb the flow of the blood which is coming out during the periods. So you can keep yourself in good hygiene conditions. और अगर आप अपने आप को गुड हाइजीन कंडीशन में नहीं रखते हो तो क्या होगा बच्चों, यू मे गेट बैक्टीरियल इंफेक्शंस. दे मे कॉज यू इल, यू मे सफर फ्रॉम स्किन प्रॉब्लम. सो टू कीप फिजिकल हाइजीन फॉर adolescent, particularly during the reproductive in the adolescent period, is very very essential. Is very very essential. Now coming to the what? Physical exercise for adolescents. Yes, physical exercise, खेलना, स्विमिंग, कोई आउटडोर या इंडोर गेम खेलना, ब्रिस्क वॉकिंग करना, एथलीट बनना, हॉकी खेलना, फुटबॉल खेलना, कोई ना कोई. उससे क्या है, यू रिमेन फिट. जब आप एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन यू स्वेट हार्ड, यू आर डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक रहता है.
जब मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है आप ठीक रहते हैं, आप तंदुरुस्त रहते हैं। तो विच इज what रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो कुछ भी आप कर सकते हैं। इंडोर गेम्स, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। स्विमिंग अगर आप कर सकते हैं, स्विमिंग कीजिए, जिनके आसपास में अवेलेबिलिटी है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी। कहने का मतलब क्या है, अपने आप को फिजिकल एक्सरसाइज में, एरोबिक्स आल्सो। कई बार क्या होता है, चलो आप और कुछ नहीं कर सकते, बाहर खेलने नहीं जा सकते, इंडोर नहीं जा सकते, आउटडोर नहीं जा सकते, क्या कर सकते हो आप? आजकल तो बच्चों क्या है, एरोबिक्स। आप डांस कर सकते हो, म्यूजिक से साथ डांस करते हो, ये भी क्या है, आपने देखा होगा। वो एरोबिक्स में क्या है, एक कोई गाना जिसमें हाथ पांव मारने होते हैं इधर उधर, वो एरोबिक्स। दैट्स ऑल। तो कहने का मतलब क्या है, इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देन यस, वेरी इंपॉर्टेंट, से नो टू ड्रग्स। से नो टू ड्रग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। क्या बच्चों, और सबसे पहली बात, व्हाट आर ड्रग्स इटसेल्फ। हम क्या बच्चों, हमने जब हार्मोन्स बच्चों डिस्कस किए थे, वो भी क्या थे, केमिकल सब्सटेंस थे। और ये जो ड्रग्स हैं बच्चों, ये भी केमिकल सब्सटेंस हैं। बट हार्मोन्स आर डिफरेंट फ्रॉम दिस ड्रग्स। व्हाई? हार्मोन्स क्या थे, हार्मोन्स वर द केमिकल सब्सटेंसेस which coordinate the activities of living organism, कोऑर्डिनेट करते हैं आपके काम के साथ। और ड्रग्स क्या है बच्चों, ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which when taken into the body change the function of the body, influence the mind, sometimes even change the behavior of a person। कहने का मतलब क्या है, जो हार्मोन्स हैं वो आपकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, और ये जो ड्रग्स हैं आपकी बच्चों, ये आपकी एक्टिविटीज को डीएक्टिवेट करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, आपके माइंड के ऊपर हावी हो जाती हैं। सो से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, what is a drug? Drug is nothing but a chemical substance which when taken into the body change the functions of the body। यानी कि मैंने कहा मतलब क्या है, जो आपकी एक्टिविटीज है उनको वो डिस्टर्ब करता है, चेंज करता है, इन्फ्लुएंस द माइंड एंड समटाइम्स इवन चेंज द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। चिड़चिड़ा हो जाता है, मारने को दौड़ेगा, काटने को दौड़ेगा। ठीक है। अब होता क्या बच्चों, ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड आप में इमोशनल स्विंग आता है। समटाइम्स क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने शायद आपको वो सुनाया भी हो, गांधी जी वाला, जब गांधी जी बैरिस्टर ऑफ लॉ करने के लिए जा रहे थे तो उनकी मां ने उनको बोला था, क्या बोला था, मेनली सिगरेट नहीं पियोगे, मीट नहीं खाओगे, शराब का सेवन नहीं करोगे, और पर स्त्री को नहीं देखोगे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने सबको शौक किए। गुड हैबिट्स, आई ऑलवेज से, व्हेन समबडी आस्क्स मी, आई ऑलवेज से आई डू नॉट हैव गुड हैबिट्स। ये गुड हैबिट्स हैं फ्रॉम सम पॉइंट्स ऑफ व्यू, यानी कुछ लोग इन्हें अच्छी आदतें मानते हैं, बट दे आर नॉट गुड हैबिट्स। अब क्या हुआ, गांधी जी को जब, अरे ना कुछ नहीं होता, एक बार लगा के तो कश, मजा आता है। अरे यार, जो टेंशन है, स्ट्रेस है, जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, सब आदमी भूल जाता है और आदमी ऊपर की दुनिया में उड़ता है। जब आप प्रोफेशनल कॉलेज में जाओगे तब ये सारी बातें आपके सामने आएंगी। कैंटीन में बैठ के चाय की प्याली के ऊपर थम्स अप एंजॉय करते, सारी बातें होती हैं, और इमोशनल स्विंग आता है आपके दिमाग में, एंड यू स्टार्ट टेस्टिंग। आई एम नॉट से आई एम टेकिंग, टेस्ट करता है पहले, और टेस्ट जो क्या है बाद में धीरे धीरे आदत बन जाती है। उसको आप क्या बोलते हैं, यू बिकम अडिक्ट टू इट एंड यू कैन नॉट लीव इट।
मैं बच्चों अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं, आपको हैरानगी होगी। When I was doing my job, I was in audit. और ऑडिट में क्या होता है बच्चों, ऑडिटर्स की ना, जहां आप ऑडिट करने को सेवा पानी बहुत करते हैं, अपनी अपनी नेचर होती है। अब क्या होता है बच्चों, कई बार ना करते हुए भी, अपनी नेचर के अगेंस्ट जाते हुए भी क्या होता था हमें, जैसे आई एम डूइंग सम ऑडिट वर्क, मुझे इस शख्स के पास बैठ के मैंने काम किया, मेरे को दूसरे के साथ भी 5 मिनट के लिए काम, द मोमेंट आई विल गो देयर, सर चाय पिएंगे, अरे नहीं भाई चाय मैंने ऑलरेडी ले ली, नहीं सर एक कप तो पीते। कहने का मतलब क्या है, दिन में 5-7 कप चाय हो जाती थी, और मुंह का जो टेस्ट था ना मेरा, हर वक्त चाय वाला रहना शुरू हो गया। तो मैंने क्या किया, जस्ट टू चेंज द टेस्ट ऑफ माई माउथ, मैंने पान पराग खाना शुरू कर दिया। शुक्र है भगवान का कि वो मैंने तंबाकू की पत्ती वाला शुरू नहीं किया, सिंपल पान पराग मसाला, उसकी ऐड भी आती थी। हमें नहीं मालूम था आप भी पान पराग के शौकीन है, वो क्या कहते हैं, ओम प्रकाश ना, शम्मी कपूर वाली ऐड अभी भी शायद कभी कभी आती है, पुरानी ऐड। तो हुआ क्या बच्चों, I became so addict of पान पराग कि पहले मैं वो 1 रुपए वाली पुड़िया खरीदता था, फिर मैंने वो 5 रुपए वाली पुड़िया खरीदनी शुरू कर दी ताकि चलो बार बार नहीं खरीदनी पड़े। और स्टेज के when I used to purchase the zipper pack which was costing during 2004 20 rupees. That means 20 rupees per day was my expenditure for this. Then one day I thought, I have become addict of this. I must shed this bad habit. So I got, by the grace of God, He has given me the willpower. Slowly and slowly and slowly, I left that bad habit. तो मैं कहने का मतलब क्या है, शुरू में आदमी इसको शौक के लिए पीता है, फिर थोड़ा गम भुलाने के लिए पीता है, देन वन बिकम्स एडिक्ट। और जब आप एडिक्ट हो जाते हो, पर्टिकुलरली द ड्रग्स, यू कैन नॉट लिव। आई हैव सीन बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चों आई शुड से विथ सॉरी, आज की तारीख में आपके शहर के बच्चे जब ट्राई सिटी मीन्स चंडीगढ़, मोहाली एंड पंचकुला चले जाते हैं, और दे गो टू गुड़गांव एंड दिल्ली, व्हाई दे डोंट कम बैक, व्हाई दे डू नॉट वांट टू कम बैक टू देयर सिटीज? ड्रग्स फ्री है, वहां पे एंजॉय करते हैं, मोमेंट्री, वो ऊपर की दुनिया में उड़ते हैं, एंजॉय करते हैं, वापस नहीं आना शुरू करते हैं। इफ यू हैपन टू विजिट the evening restaurants in Chandigarh and all that in your life, you can find so many boys and girls of your city enjoying their life, the drugs and all that, relaxing over the drugs. So it's the bad, not good for you. That is why ये चैप्टर आपके इस स्टेज पे क्यों इंक्लूड किया गया है, क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया है, क्योंकि अब चेंजेस आ रही हैं, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल। मस्ट से नो टू ड्रग, मस्ट से नो टू ड्रग्स। इसका बैड इफेक्ट क्या होगा बच्चों? व्हाट इज द बैड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स? ड्रग्स आर एडिक्टिव, मैंने आपको बता दिया। ड्रग्स एडिक्ट्स बिकम इरिटेबल एंड लूज इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज, इवन जॉब्स, एंड ड्रग्स डू फिजिकल हार्म टू द बॉडी। ये जो आपको फिजिकल एक्सरसाइज टू मेंटेन गुड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो आपकी हेल्थ को भी बिगाड़ती है। एंड इन पर्टिकुलर बच्चों क्या होता है, कुछ ड्रग्स की वजह से, और समटाइम्स क्या है बच्चों, व्हेन यू आर टेकिंग ड्रग्स, और ड्रग्स कौन सी है बेटे? कैफीन, अल्कोहल, कोकीन, गांजा, चरस, ये सब आप कह सकते ये ड्रग्स है। इवन मार्फिया के इंजेक्शंस। अब क्या होता है बच्चों, तब ये होता है कि ड्रग्स लेनी है, दे परचेज ए एम्प्यूल ऑफ
दैट एंड टेक वन सिरिंज, सेम सिरिंज वो लगा रहा है, उसी सिरिंज को आप सपोज इफ somebody is infected with some problem or some disease that is carried through that syringe to your body, और सबसे बड़ी वो वाक्य कौन सी है बच्चों? वो बीमारी कौन सी है? एड्स, HIV. थ्रू व्हाट इज एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. आपने एक्वायर की है, अपनी इम्यूनिटी को डाउन किया है. वायरस कौन सा है? जैसे आजकल कोविड-19 है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि वो वायरस आपके अंदर जो इम्यूनिटी है, फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस, फाइट अगेंस्ट द डिजीज, फाइट अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम, वो कम हो जाती है. उसे हम एड्स बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. कहने का मतलब क्या है? आपने वो एक्वायर की है और आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, और अगर आपको कोई छोटी सी बीमारी भी हो सकती है, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है. Bacteria, viruses, they go on attacking us. We fall sick also because of these things. But a person who has been infected by HIV, if he gets small problem of influenza, खांसी होती है, simple fever होता है, जुकाम होता है, उसी से वो धीरे धीरे क्या होता है? मर जाता है, because there is no cure. और मेनली जो बच्चों एड्स होता है, दो रीजंस हैं उसके, मेन 2 रीजंस हैं. इफ यू आर यूजिंग ड्रग्स एंड यूजिंग द शेयरिंग द सिरिंज, जिससे आप इंजेक्ट करते हो अपनी बॉडी के अंदर, अगर आप शेयर कर रहे हो, अगर दूसरे इंसान को, दूसरे पर्सन को HIV है, दैट विल बी इन्फेक्टेड टू यू ऑल्सो. एंड second most reason is it is a sexually transmitted disease. If you are having an unsafe sex with a person who is already infected by HIV, the second person will be automatically infected. So, तीसरा reason we have bachcho. From a pregnant lady, it can go to the child also through breastfeeding, and sometimes through genes also, but mainly it is through use sharing of syringe, and it is a sexual transmitted disease. So this is all about what? Say no to drug and all that. Now coming to the last topic, that is hormones other than sex hormone. Sex hormone बटे कौन से थे? Gonadotropic, released by the pituitary gland, which stimulates the testes and ovaries, testes to testosterone, ovary to estrogen. वो ये दोनों सेक्स हार्मोन्स क्या करते हैं? They bring about the secondary sexual changes in the adolescence. Not adolescence. Adolescence is a period. एडोलेसेंट्स के अंदर वो जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जो चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड और द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी, दे टेक्स प्लेस ड्यू टू द सेक्स हार्मोन्स. नॉट ओनली दीज आर द हार्मोन्स व्हिच इफेक्ट योर लाइफ, देयर आर अदर हार्मोन्स आल्सो, अदर ग्लैंड्स आल्सो. हमने पढ़ा था एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ऑल दैट, डक्ट ग्लैंड्स एंड दिस duct glands, exocrine, duct वाले, endocrine, duct glands and all that. तो क्या है? और कौन से ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रीट्स करते हैं which affect our bodily activities other than the sex hormones that we are going to study. Mainly we will study बच्चों, मैंने आपको एक बहुत मेहनत से डायग्राम बना के दी है, यू कैन गो थ्रू. मैंने आपको बच्चों लास्ट लेसन में पढ़ाया था, पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड.
क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन फंक्शन ही यही है, इट रिलीज सो मेनी हार्मोन्स विच आर इंजेक्टेड इनटू द ब्लड। ये क्या है बच्चों, डक्टलेस ग्लैंड, और इट इज लाइंग जस्ट, जो आपका ब्रेन है उसके बिल्कुल जस्ट बीनीथ, नीचे होता है छोटा दिमाग, मैंने बोला था ना यहां पे छोटा दिमाग, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट बिलो द ब्रेन। अब क्या है, इट इज रिलीजिंग सो मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। वो हार्मोन्स क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट द अदर ग्लैंड्स टू सिक्रीट देयर हार्मोन्स। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मेजर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। जैसे स्कूल के टीचर के मास्टर जी बोलते हैं ना, मास्टर जी। मेरे को अक्सर जो क्या है, कभी भी मैम के साथ मैं जाता हूं ना मार्केट में, मैम मैम, उनको तो मैम बोलते हैं, और मेरे को पता है क्या बोलते हैं, मास्टर जी। क्या बोलते हैं, मास्टर जी। और मास्टर जी का अभिप्राय तो आप समझते हैं, और मास्टर का काम भी क्या है बच्चों, टू कंट्रोल, टू हैव डिसिप्लिन। सारी बातें ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ये करना है, वो नहीं करना है, इन पासिंग इंस्ट्रक्शंस। सो, और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, इट सेल्फ इज रिलीजिंग वन ग्रोथ हार्मोन। और चाइल्डहुड के अंदर बच्चों, इफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज क्वाइट फंक्शनल, इफ इट इज रिलीजिंग द ग्रोथ हार्मोन क्वाइट सफिशिएंटली, मेरी तरह टॉल बनेगा, मेरी तरह टॉल बनेगा। और अगर बचपन में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग द व्हाट ग्रोथ हार्मोन्स इन सफिशिएंट अमाउंट, यू विल बी ए ड्वार्फ। यू विल बी ए ड्वार्फ मतलब नाटे करके रह जाओगे, नाटे करके रह जाओगे। ये तो फंक्शन है बच्चों में पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, खुद एक अपना वो ग्रोथ हार्मोन्स है, बाकी दूसरे हार्मोन्स हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द टेस्टिस एंड द ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन टू ब्रिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव चेंजेस। ओके, लाइकवाइज ये जो थायराइड ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, ये ओवरीज और टेस्टिस तो हमने डिस्कस कर लिया। These are also controlled by the pituitary gland. It is releasing specific hormone which stimulates the thyroid gland and the adrenal gland to release their hormones. अब थायराइड ग्लैंड क्या है बच्चों, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन स्टिमुलेट कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन, व्हाट इट इज डूइंग, ओके, लेट्स ट्राई टू स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस। थायराइड ग्लैंड्स मेक्स ए हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, controls the rate of body metabolism. If thyroxine hormone is released in abundance, ज्यादा होता है, रिलीज ही रिलीज किए जा रहा है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज विल बी इंक्रीज अ लॉट। उससे क्या होगा बच्चों, आप जो खा रहे हो, पी रहे हो, कहने का मतलब क्या, व्हाट्स योर फूड यू आर टेकिंग, दैट इज बीइंग लॉस्ट और एब्जॉर्ब्ड इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आपकी बॉडी को तो लगेगा नहीं, रिस्टोर तो होगा नहीं, अचीवमेंट तो होगा नहीं। यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट, यू विल हैव द प्रॉब्लम ऑफ डायरिया, यू विल बी पासिंग स्टूल 3-4 टाइम्स अ डे। इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। और जिनके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन लेस जनरेट हो रहा है, उनके अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज विल बी रेड्यूस्ड, और वो क्या हो जाता है बच्चों, ओबेसिटी,
फूलना शुरू कर देते हैं, particularly in case of ladies. Women fall, they are suffering from thyroid problem. और उसके लिए क्या है बच्चों? Altroxin. Then tablets आती हैं which are having thyroxine hormone, वो देते हैं, so that जो क्या करने का मतलब क्या है? Thyroid gland is bit non-functional or less functional to fulfill the requirement of thyroxine hormone. Additional medicine or oral hormone is given. और secondly क्या बच्चों? This thyroid gland is making this thyroxine hormone through what? Iodine. वही आ गई ना बात यहां पे, nutritional need, vitamins and minerals. What is iodine? Iodine is a mineral. बच्चों क्या है, आपने देखा होगा हमारा जो पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर, इसके अंदर भी साल्ट्स होते हैं, आयोडीन होता है. बट देयर आर फ्यू एरियाज इन आवर कंट्री वेयर द वाटर इज आयोडीन डेफिशिएंट. पहले क्या था, उन एरियाज में यू कैन नॉट यू सेल, मार्केट के अंदर यू कैन नॉट सेल नॉन आयोडाइज्ड साल्ट. लेकिन आजकल क्या है बच्चों, अब तो बात ही खत्म हो गई. ऑल ओवर इंडिया साल्ट, आयोडाइज्ड साल्ट, टाटा का आयोडाइज्ड साल्ट. वो जो आयोडाइज्ड साल्ट हम अपने खाने में यूज करते हैं, दैट इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस appropriate thyroxine hormone. तो कहने का मतलब क्या है, आपको जो साल्ट यूज करना है वो कौन सा करना है? आयोडाइज्ड साल्ट. आजकल तो बच्चों मिनरल्स वाले साल्ट भी आ गए हैं, सुपर लाइट साल्ट भी आ गए हैं. नॉट ओनली दे कंटेन आयोडीन, दे कंटेन आयरन आल्सो. बहुत सारे कॉस्टली साल्ट भी मार्केट में आ गए. बट you can go for any Nirma, Tata, Captain Cook, any salt, but that should be iodized. Otherwise you can have. And the problem क्या होता है, लेडीज के अंदर वो गले में यहाँ वो सूजन सी आ जाती है, गांठ सी बाहर आ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? goiter. क्या बोलते हैं? goiter. This problem of goiter in ladies and all that, it is all because of what? Thyroid gland. और बच्चों, आई शुड नॉट टेल और आई मस्ट टेल, दोनों बातें हैं. व्हेन द गर्ल्स गेट मैरिड, आजकल क्या है बच्चों, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है. और यहां भी जो थायराइड प्रॉब्लम है इज काजिंग ए मेजर प्रॉब्लम. जिन लड़कियों का थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन इज नॉट बीइंग सिक्रीटेड प्रॉपरली, दे गेट डिफिकल्टी इन कंसीवमेंट. उन्हें प्रेगनेंसी बहुत देर से होती है. सो इट इज हैविंग ए इंपॉर्टेंस इन योर रिप्रोडक्टिव लाइफ आल्सो, दिस थायराइड ग्लैंड. देन कमिंग टू पैनक्रियास. यस, pancreas is also a what important gland. ये होता कहाँ है? ये जो थायराइड ग्लैंड है बच्चों कहाँ है? आपकी जो ट्रैकिया के ऊपर होता है, ये श्वास नली है जो लंग्स में जा रही है ये. ओके. और ये जो आपका ये क्या है? स्टोमक है. स्टोमक के बिल्कुल नीचे पैनक्रियास है. ये बच्चों दोनों तरह का ग्लैंड है. इसके डक्ट भी है and it is secreting its hormones directly into the blood also. Exocrine, it behaves exocrine and endocrine. ये जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है डक्टलेस है, आपका थायराइड ग्लैंड है डक्टलेस है, डायरेक्टली रिलीज करता है कहां? ब्लड. बट दिस इट इज बिहेविंग बोथ वेज. थ्रू डक्ट आल्सो इट इज पेनिट्रेटिंग जूस. ये किसमें डालता है? स्टोमक में डालता है फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन. और सेकेंडली जो सबसे बड़ा बच्चों क्या है, द हार्मोन रिलीज्ड बाय द पैनक्रियास इज इंसुलिन. लिखा है मैंने कहीं क्या नहीं लिखा भाई? यस, इंसुलिन.
इंसुलिन क्या है? कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर इन ब्लड। अब क्या होता है बच्चों? इफ the pancreas are not releasing this particular hormone, which is what insulin, उससे क्या होगा बच्चों? The level of sugar in blood will increase and इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज। आजकल आपने देखा होगा बच्चों, कभी अगर घर में मेहमान आता है उससे हम चाय पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं? चाय फीकी लेंगे या मीठी लेंगे? कहने का मतलब क्या है भैया, डायबिटीज तो नहीं है आपको? कहीं ऐसा ना हो ऑलरेडी योर लेवल ऑफ शुगर इज मोर इन द ब्लड, मीठी चाय पिला दी तो गड़बड़ हो जाएगी। और उसका इफेक्ट क्या है बच्चों? मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर इन ब्लड क्या है बच्चों? सिंस द लेवल ऑफ शुगर इज क्वाइट हाई, अदर साल्ट्स, कैल्शियम, फास्फोरस, अदर मिनरल्स, they cannot be assimilated into the body. Your blood cannot take the other required minerals to the cells of your body. So diabetes क्या है बच्चों? बहुत ही गंदी बीमारी है। एक बार जब हो जाती है तो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती, और ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ द पर्सन दिस डायबिटीज इज गोइंग टू इफेक्ट वन ऑफ योर वाइटल ऑर्गन्स। इट मे इफेक्ट योर किडनीज, इट मे इफेक्ट योर हार्ट, इट मे इफेक्ट योर आईसाइट। कोई ना कोई वाइटल ऑर्गन को इफेक्ट करेगी, डैमेज करेगी। तो कहने का मतलब क्या है? इस ग्लैंड का भी इंपॉर्टेंस है इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके लिए क्या है बच्चों? अगर माइनर प्रॉब्लम है डायबिटीज की, इट कैन बी सेटराइड बाय योर डाइट कंट्रोल, चीनी कम खाइए। सेकेंडली, गोइंग फॉर ए इवनिंग एंड मॉर्निंग वॉक ऑफ अबाउट 3-4 किलोमीटर्स। अगर आप सैर वैर करते हैं तो योर बैलेंस इज मेंटेन्ड एंड योर पैनक्रियाज आर प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन हार्मोन इन द सफिशिएंट क्वांटिटी व्हिच विल कंट्रोल द लेवल ऑफ व्हाट? शुगर इन द ब्लड। ओके, yes, nothing more for pancreas. Now the left out is the last, adrenal gland. Yes, it is also very beautiful gland. यहां बच्चों में आपको क्या है? ये ऐसा ग्लैंड है बच्चों, ये भी किसके अंडर काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के। दिस स्टिमुलेट्स और दिस एक्टिवेट्स। अब क्या होगा? ये इस भाई साहब इसको कमांड करेंगे एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एड्रेनलिन हार्मोन, और एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी ये सिक्रीट करता है। ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में बात करें। ओके, अब क्या है बच्चों? कई बार क्या होता है, आप कभी किसी के घर जाते हैं, उनके घर में डॉग है। जैसे ही, अब आपको नहीं मालूम, आपने बेल भी नहीं बजाई, अक्सर तो क्या होता है, बाहर बोर्ड लगा होता है, बीवेयर ऑफ डॉग्स, लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ भाई। आप अपने मस्ती में गए, दोस्त का घर है, मिलने जाना है, फटाक से आपने गेट खोल दिया और आगे क्या है? ऊंचा तगड़ा डॉग, एकदम से वो भौं, और इमीडिएट रिएक्शन आपका क्या होता है बच्चों? इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है बच्चों? इमीडिएट रिएक्शन आपका क्या होता है? आप दौड़ते हो, और अक्सर आपने देखा होगा जब आप दौड़ते हो, यू ऑलवेज बीट द स्पीड ऑफ दैट डॉग। जबकि कभी जिंदगी में इतना तेज आप नहीं भागे होते। ये कैसे हो जाता है? और कई बार क्या होता है बच्चों,
यानी कहने का मतलब है आपका कोई मन नहीं है, आप शांत स्वभाव के बच्चे हो, आपके साथ कोई बेवजह झगड़ा करने के लिए, तो आपके दिमाग में एकदम से एनर्जी सी वो आपके बॉडी में आती है, कड़क कड़क दो लगाए वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। यानी कि इमरजेंस जो एक आप एनर्जी लेते हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड, which is it is two in pair, दो होते हैं बच्चों, वन पेयर है। कहां होते हैं? किडनीज के जस्ट ऊपर होते हैं, किडनीज के जस्ट ऊपर होते हैं। और जब आपको कहने का मतलब क्या है, फ्यूरियस डॉग है आपके सामने, वो आपको काट सकता है, उस वक्त क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर है? क्यों आप भाग लेते हो और तेज भाग लेते हो? कैसे होता है बच्चों? दिस एड्रेनलिन हार्मोन स्पीड्स अप द हार्ट बीट, increases breathing rate, raises blood pressure and causes liver to release more stored glucose into blood. जब अगर आपका सांस आपकी बड़ी तेज तेज चलनी शुरू हो गई, उससे क्या होगा? मोर ऑक्सीजन, मोर एनर्जी। ब्लड के अंदर लीवर ने ज्यादा शुगर डाल दी, पहले ही आप तेज तेज सांस ले रहे हो, आपके हार्ट बीट तेज तेज चल रही है, जल्दी जल्दी सांस अंदर बाहर आ रही है, तो क्या होगा? मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन योर बॉडी एंड दिस मोर एनर्जी इज सफिशिएंट टू रन अवे फ्रॉम द सीन। ठीक है? और आप वो खूंखार कुत्ते को भी बीट कर देते। चलो इसको छोड़ दीजिए, आप नहीं लड़ना चाहते, क्या होता है? आपके साथ कोई झगड़ा करना चाहता है और आपको पीटना चाहता है, एकदम से आप क्या करोगे? यार फूटो, दौड़ लो, यहां से भाग जाओ, पीछे पीछा छोड़ो। सो उसको किसका फंक्शन है? इस ग्लैंड। एंड इट कंट्रोल योर टेम्परामेंट्स आल्सो, गुस्से को भी कंट्रोल करता है। और सेकंड क्या है बच्चों? It is producing one more hormone which is aldosterone, which controls the level of salt। अब क्या है बच्चों? जिनके अंदर एड्रिनल ग्लैंड, जिन ह्यूमन बींग्स में, ऑर्गेनिज्म में एड्रिनल ग्लैंड ज्यादा फंक्शनल है, ठीक है, और वो लेवल ऑफ साल्ट को कंट्रोल कर पा रहा है। सपोज अगर लेवल ऑफ साल्ट इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है, एक्सेस ऑफ लेवल ऑफ साल्ट इज देयर, उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों? बीपी, ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर के लोगों को बच्चों क्या दिया जाता है? एडवाइस, नमक कम खाइए। डायबिटीज वालों को शुगर कम खाइए और ब्लड प्रेशर वालों को नमक कम खाइए। सो दिस इज द ग्लैंड विच इज फंक्शनली हैविंग टू फंक्शंस। ओके, so the adrenal gland also produces and secretes another hormone called aldosterone, and the aldosterone hormone secreted by the adrenal gland maintains the correct salt balance in the blood। अब correct salt balance है, imbalance हो गया, लेवल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, लेवल डाउन हो गया, बीपी डाउन हो गया। अब जब बीपी डाउन होता है तो क्या करते हैं भाई? कॉफी पीजिए, स्ट्रॉन्ग कॉफी पीजिए, नमक ज्यादा चाटा करो यार, और मक्खन भी खाना है तो पेस्टराइज नमक खाओ, क्यों? अपना बटर खाओ, क्यों? उसके अंदर साल्ट होता है। कहने का मतलब क्या है? दिस एल्डोस्टेरोन कंट्रोल द लेवल ऑफ साल्ट। लेवल ऑफ साल्ट कम हो जाएगा तो बीपी लो, अगर ज्यादा हो जाएगा तो बीपी हाई। कहने का मतलब क्या है? दिस एल्डोस्टेरोन बाय कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ साल्ट कंट्रोल्स योर ब्लड प्रेशर
also, blood pressure also. This is all about the main major gland. और भी बहुत glands हैं body के अंदर, but for your study point of view, I think study of these glands and study of this under reaching the age of adolescence is quite sufficient. Yes, one more thing is there. What is the role of that hormones in case the life history of other animals? जैसे हमने reproduction में पढ़ा था, how reproduction takes place in case of frog. They undergo a metamorphosis, sudden change from tadpole, larva to tadpole to frog. This metamorphosis also takes place with the help of hormone thyroxine. कहने का मतलब क्या है? In case the pond or that stagnant water where that female frog has laid the egg, they have been fertilized through the sperm of the male frog. Now they have hatched also. Tadpoles are there. One fine morning we may see a number of frogs jumping in that pond. But in case the water of that pond is not containing what? Iodine. If the level of iodine is less, thyroxine generated or produced by that larvas will be less. One fine morning, instead of finding frogs jumping, आप क्या देखोगे? सभी वो जो कुछ पूंछ वाले छोटे मछलियां सी थी वो मर जाती. So thyroxine brings about the metamorphosis in frogs also. Likewise, जो insects हैं इनके अंदर भी क्या है बच्चों? Metamorphosis होती है. And this metamorphosis in insects takes place with the help of insects hormone. And with this we come to the end of topic. Rather we say we come to the end of course contents for the first semester half year end. We will revise. I will be in touch with you. Homework is being prepared by we people. It will be. I don't know what is the procedure adopted by the director ma'am, how homework will be given to you people. But be in touch with the school, with me also for any guidance. Thank you. Enjoy your study. For 10 days, they will be off.